ڈویژن آف دا ہیومن نروس سسٹم. انسان کے نروس سسٹم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر ایک جو ہے سینٹرل نروس سسٹم ہے اور نمبر 2 جو ہے وہ پیریفرل نروس سسٹم ہے. تو نروس سسٹم کا پہلا پارٹ جو ہے ہمارے پاس سینٹرل نروس سسٹم ہے جو کہ برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہے. سینٹرل نروس سسٹم کا سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ برین ہے. سب سے پہلے اس کو ہم پڑھ لیں گے. برین چونکہ کمپلیکس اور بڑا اسٹرکچر ہے، اپنے آسانی کے لیے ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے اوپر والا حصہ جو ہے اس کو ہم فور برین کہتے ہیں، اور درمیان میں مڈ برین موجود ہے، اور سب سے نیچے جو ہے وہ ہائنڈ برین موجود ہے. یہاں پہ اس امیج میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کو لائٹ ریڈش جو ریجن نظر آتا ہے، یہ پورا کے پورا یہاں سے یہاں تک یہ پورا جو ہے یہ فور برین ہے. اور فور برین کے نیچے یہ چھوٹا سا جو پرپل کلر میں چھوٹا سا ریجن ہے، یہ ہیومن میں بہت ریڈیوسڈ ہوتا ہے، اس کو مڈ برین کا نام دیتے ہیں. اور اس سے نیچے یہ جو ریجن ہے جو بلو میں نے دکھایا ہے، یہ ہائنڈ برین ہے. ان تین حصوں کو فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین کو ہم علیحدہ علیحدہ ڈسکس کر لیتے ہیں. فور برین کے اسٹرکچر کو ہم فردر 2 سب پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصے کو ہم ٹیلنسیفلان کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ہم ڈائنسیفلان کہتے ہیں. تو یہاں اس اسٹرکچر کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. یہ جو ہے یہ ہمارے پاس پورا جو لائٹ ریڈش ریجن ہے، یہ پورا کے پورا فور برین ہے. اس فور برین کے اندر اب یہاں پہ اس فور برین کا یہاں سے جو اوپر والا حصہ ہے یہ پورا کے پورا ٹیلنسیفلان کہلاتا ہے. اور اس کے اندر ہی اس کا جو یہ والا حصہ ہے یہ والا حصہ یہ ڈائنسیفلان کہلاتا ہے. تو پہلے ہم ٹیلنسیفلان کو ڈسکس کریں گے. ٹیلنسیفلان جو ہے اس کے اندر جو اس کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ سیریبرم ہے. یہ پورا اسٹرکچر جو ہے یہ والا امیج بھی یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ پورا کہ پورا سیریبرم ہے. سیریبرم ہمارے دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے، بہت ہی کمپلیکس اور لارج سرفیس ایریا کے ساتھ یہ اسٹرکچر ہے. ہمارے باڈی کے زیادہ تر فنکشنز جو ہیں سینسری فنکشنز اور موٹر فنکشنز وہ زیادہ تر اس سیریبرم میں ہی کنٹرول ہوتے ہیں. تو سیریبرم جو ہے یہ ہمارے دماغ کے اندر اس کے دو بڑے حصے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حصہ دیکھیں یہاں سے ایک درمیان میں ایک فیشر موجود ہے. ٹھیک ہے، اس سائڈ میں جو حصہ ہے اس کو ایک ہم کہتے ہیں رائٹ ہیمسفیئر. یہ پورا سیریبرم کا ایک ہیمسفیئر ہے، دوسرا ہیمسفیئر جس کے دو بڑے حصے درمیان میں ایک تقسیم ہے جس کو ہم فیشر کہتے ہیں، ایک رائٹ ہیمسفیئر اور لیفٹ ہیمسفیئر. ٹھیک ہے، پھر ہر ہیمسفیئر کو آپ دیکھیں تو ہر ہیمسفیئر کے پھر جو ہیں پارٹس موجود ہیں. یہ اس کا فرنٹل ریجن ہے جس کو ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں، اور یہ اس لوب کو ہم پیرائٹل لوب کہتے ہیں، اور اس لوب کو جو ہے ہم آکسیپیٹل لوب کہتے ہیں. اس لوب کو ہم ٹیمپورل لوب کہتے ہیں. تو یہ اس کے مختلف لوبس ہیں. اس کے اندر ہر لوب کے اندر مختلف باڈی کے فنکشنز کنٹرول ہوتے ہیں، اور باڈی کے زیادہ تر ہمارے اندر فنکشنز اس سیریبرم میں کنٹرول ہوتے ہیں. ہم اگر دوسرے آرگینزمس سے سپیریئر ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ سیریبرم ہی ہے. ہیومن کی باڈی کے اندر یہ سیریبرم بہت زیادہ سرفیس ایریا کے ساتھ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس لیے باڈی کے زیادہ تر فنکشنز جو ہے اس سیریبرم میں ہی کنٹرول ہوتے ہیں. ہمارے مقابلے میں دوسرے آرگینزمس جو ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو ان کے اندر جو فنکشنز ہیں ہائر مینٹل فنکشن وہ ہمارے مقابلے میں
कम होते हैं। इसकी वजह ये सेरेब्रम है, इनकी सेरेब्रम इतनी डेवलप नहीं होती। तो इस सेरेब्रम के अंदर हमारे बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। हमारे ज़्यादातर सेंसरी फंक्शन जैसे कि साइट देखना जो है, स्पीच, टेस्ट, हियरिंग, इन सेंसरी फंक्शंस के सेंटर जो है वो सेरेब्रम में मौजूद होते हैं। और ये इस सेरेब्रम के मुख्तलिफ लोब्स में मौजूद, फॉर एग्ज़ाम्पल हियरिंग जो है उसका सेंटर यहाँ पे मौजूद होता है टेम्पोरल लोब में। और साइट जो है विजन, वो यहाँ ऑक्सीपिटल लूब के अंदर इसका सेंटर मौजूद होता है। और इस तरह स्मेल के लिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए इस फ्रंटल लूब के नीचे इस तरह दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पेयर फॉर्म में, इनको हम ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। वो इस सेरेब्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन टेलेंसेफ्लॉन का वो हिस्सा है। सेंस ऑफ स्मेल उस ओल्फैक्टरी लूब के अंदर कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये फ्रंटल लोब जो है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन स्पीच है, वो यहाँ पे कंट्रोल होता है। और इस तरह हमारे बॉडी के जो मूवमेंट के साथ मस्कुलर मूवमेंट को भी सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है, और इसका सेंटर यहाँ पे होता है फ्रंटल लूब और पैराइटल लूब के दरमियान में। ये वाली जगह जो है, इसमें हमारे मस्कुलर मूवमेंट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कुछ हायर मेंटल फंक्शंस जैसे कि लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग और जजमेंट, इन हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं ये भी सेरेब्रम में ही कंट्रोल होते हैं, जो कि ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इतने डेवलप नहीं होते। इसलिए ह्यूमन्स जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में इन फंक्शंस में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं और उनसे सुपीरियर हैं। इसके अलावा आप फोर ब्रेन के दूसरे हिस्से को देख लें, जिसको हम टेलेंसेफ्लॉन का नाम देते हैं। इसके अंदर थैलेमस है, ये वाला जो यहाँ पे आपको एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नज़र आता है, दिस इज थैलेमस, ये थैलेमस है, ठीक है। इसमें थैलेमस है। थैलेमस का काम बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बॉडी के कोई फंक्शंस कंट्रोल नहीं होते। अलबत्ता आपको पता है सेरेब्रम के अंदर, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ज़्यादातर हमारे सेंसरी और मोटर फंक्शंस जो है सेरेब्रम में कंट्रोल होते हैं, तो उनके लिए जो नर्व इम्पल्सिस जो सेरेब्रम की तरफ आते हैं या सेरेब्रम से जाते हैं, तो वो सबसे पहले थैलेमस में आते हैं। देखें, अगर आपकी बॉडी के लोअर रीजन से अगर मैसेजेस आते हैं तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस में आएंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है उन सिग्नल्स को, उन नर्व इम्पल्सेस को उनके रेस्पेक्टिव सेंटर्स की तरफ ये गाइड करता है, इसलिए हम इसको रिले स्टेशन कहते हैं। यानी ऊपर जाने वाले सारे मैसेजेस जो है यहाँ पे आके अपने सेरेब्रम में अपने सेंटर्स की तरफ ये चले जाते हैं। और सेरेब्रम से अगर कोई मोटर इम्पल्सेस जो है, मोटर फंक्शन से रिलेटेड कोई इम्पल्सेस नीचे जाते हैं, तो सबसे पहले वो भी हाइपोथैलेमस में आते हैं। हाइपोथैलेमस जो है इनको फिर नीचे उनके इफेक्टर्स की तरफ उनको ये गाइड कर लेता है। तो ये रिले स्टेशन है जहाँ पे नर्व इम्पल्सेस आके सेरेब्रम में चले जाते हैं, या सेरेब्रम से आने वाले इम्पल्सेस जो है वो नीचे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ जाते हैं। इसका और कोई फंक्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है डायनसेफ्लॉन का, वो हाइपोथैलेमस की ये नीचे मौजूद होता है, ठीक है। दिस इज सेड टू बी द हाइपोथैलेमस, जिसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी अटैच होता है। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि हाइपोथैलेमस अपने से अटैच्ड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसके सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। और हमें पता है बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ये है हार्मोन के सेक्रेशंस को कंट्रोल करने में हाइपोथैलेमस जो है इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, हंगर जो भूख की फीलिंग आती है, थर्स्ट और प्यास की फीलिंग, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक जगह में
रहना या उससे भाग जाना, उसका फैसला जो है वो हमेशा के लिए हाइपोथैलेमस में होता है। इसके अलावा बायोरिदम्स जो हैं, जो हमारे रोज़ाना के मामूलात में मुख्तलिफ इवेंट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो रिपीट होते हैं, तो इनको कंट्रोल करने में हाइपोथैलेमस का रोल है। ठीक है, जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स में माइग्रेशन है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज़म जो है वो से बहार में वो मुख्तलिफ परिंदे हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो नेक्स्ट बहार में फिर वो आ जाते हैं। तो ये बायोरिदम्स हैं जो ख़ास पीरियड के बाद एक इवेंट रिपीट होता है। इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है, इनका जो है ख़ास वक्त में रिपीट होना जो है, इसको ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। डायंसेफ्लान का एक और हिस्सा जो है वो एमिगडेला है। एमिगडेला जो है यहाँ पे इसको वो इस जगह में देखें, यहाँ पे इसके ऊपर येलो लाइन आ गई, ये वाला छोटा सा एक रीजन है एमिगडेला, तो ये एमिगडेला है। इसमें एमिगडेला के अंदर जो कि डायंसेफ्लान का एक हिस्सा है, इसके अंदर सेंस ऑफ प्लेजर, जो हम किसी चीज़ में प्लेजर फील करते हैं, ठीक है, जो हमें खुशी मिलती है, इनर सेटिस्फेक्शन जो मिलती है, उसकी सेंसेशन जो है वो एमिगडेला में हम फील करते हैं। और इस तरह पनिशमेंट की फीलिंग, हम किसी चीज़ में हम मलामत महसूस करते हैं या हमें तकलीफ़ होती है, कोई बंदा रोता है, पनिशमेंट की जो ये वाली फीलिंग है, पनिशमेंट की फीलिंग, ये भी एमिगडेला से ही आता है। और इस तरह सेक्सुअल एरोजल, ठीक है, ये सेक्सुअल वाला रिस्पॉन्स जो है वो भी एमिगडेला से ही आता है। इस तरह जो है नेक्स्ट इसका आखिरी हिस्सा यानी डायंसेफ्लान का, वो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस जो है ये वाला रीजन है, ठीक है, ये दिस इज़ हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस के अंदर जो मेमोरीज हमारे जहन में ज़्यादा अरसे तक स्टोर रहते हैं, वो हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर होते हैं। और सिर्फ हिप्पोकैम्पस में लॉन्ग टर्म मेमोरी का सेंटर हिप्पोकैम्पस में ही नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज सेरेब्रम के टेम्पोरल लूब में और पैराइटल लूब का भी उनके साथ ताल्लुक़ है, वहाँ पर भी स्टोर होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन को। ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन यहाँ पे जो आपको ये पर्पल कलर में नज़र आता है छोटा सा, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है ह्यूमन में और मैमल्स में, जबकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। और यहाँ पे ज़्यादा फंक्शंस कंट्रोल होते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में यहाँ पे ज़्यादा फंक्शंस कंट्रोल नहीं होते। कुछ रिफ्लेक्सेस जैसा कि एडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस जो हैं, वो एक्शंस जो कि ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस, सारे रिफ्लेक्सेस नहीं, जिनका ताल्लुक सुनने और देखने के साथ है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सेस यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा बॉडी के जो लोअर रीजन से जो नर्व इम्पल्सेस आते हैं, वो यहाँ से गुजर कर हायर ब्रेन सेंटर्स में चले जाते हैं। तो उन न्यूरॉन्स जो नीचे से आते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, इन न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ जो है वो यहाँ पे होते हैं और इनके एक्सॉन्स और इनके डेंड्राइट्स यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पे कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। उनके कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे कोई ख़ास फंक्शन बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। और सबसे आखिरी बॉडी ब्रेन का जो आखिरी हिस्सा है वो हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन यहाँ पे इस इमेज में जो आपको लाइट ब्लू कलर में जो ये नज़र आता है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है। तो इस हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं। एक को हम पोन्स कहते हैं, दूसरा सेरेबेलम है और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा है। इस इमेज के अंदर ये जो थोड़ा सा बल्ज आउट जो हिस्सा है, ये हमारा पोन्स है और ये हमारे दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है जिसको हम
सेरेबेलम कहते हैं और ये हाइंड ब्रेन में मौजूद होता है। और ये जो है दिमाग का सबसे लोवेस्ट स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड स्ट्रक्चर है। इसको हम मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, ये ब्रेन का आखिरी हिस्सा है। तो इनको हम जो है पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को मिला के हम ब्रेन स्टेम भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी हाइंड ब्रेन के अंदर भी बॉडी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाइटल फंक्शंस यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले हम पोन्स को ज़रा देखें। पोन्स के अंदर सबसे विलीन काम इसका भी यही है कि मेडुला ऑब्लंगेटा से जो नर्व इम्पल्सेस आते हैं उनको सेरेबेलम की तरफ गाइड करना या मिड ब्रेन की तरफ गाइड करना जो है वो पोन्स का काम, एक काम ही हो गया। दूसरा काम जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इसके साथ ब्रीथिंग के प्रोसेस में इसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है। और तीसरा जो है पोन्स जो है सेंस ऑफ स्लीपिंग और वेकफुलनेस, बंदा जागा हुआ है या सोया हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है ये पोन्स ही कंट्रोल करता है। इसके मुकाबले में अगर हम सेरेब्रम में जाएं, ठीक है, सेरेब्रम के अंदर ये हमारे बॉडी के जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये है मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल तो सेरेब्रम में होते हैं, लेकिन इनको कोऑर्डिनेट करना, वो बॉडी को बैलेंस रखना, वो सेरेबेलम का काम है। तो कोऑर्डिनेट करने का क्या मतलब है? देखें, जब एक बंदा मूवमेंट कर रहा होता है तो इसकी बॉडी का सिर्फ एक मसल जो है वो कंट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, बहुत सारे बॉडी के मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और एक काम को करने में वो हेल्प करते हैं या एक तरफ जाने में उसको हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लेट से एक बाल हवा में है और फील्डर इसको कैच करने के लिए बॉल की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त उसके टांगों के मसल्स भी कंट्रैक्ट होते हैं जो कि उसको बाल की तरफ लेके जाते हैं, और हाथों के मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। आई मसल जो हैं उन्होंने आई के बाल को फिक्स किया हुआ है उस बाल के ऊपर, ठीक है। उस बाल के बहुत सारे मसल्स जो हैं एक मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से फिर इस बंदे को इस बाल के नीचे पहुंचाते हैं और हाथों के ज़रिए वो बाल को कैच करता है। तो बहुत सारे मसल्स उस वक्त कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना वो सेरेबेलम का काम है। तो उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से फिर ये बंदा जो है बाल को कैच कर लेता है। तो ये इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे सेरेबेलम का काम है। इस तरह दूसरी बात जो हमारे बॉडी का बैलेंस है, ठीक है, हम किस तरफ जो है हमारा बॉडी जो है वो सीधा है या हम टेढ़े खड़े हुए हैं या हम कहीं पे गिरने वाले हैं या बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं, ये फीलिंग्स जो हैं बॉडी के बैलेंस के बारे में ये भी हमें सेरेबेलम ही बता देता है। और सबसे जो दिमाग का आखिरी हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे इस मेडुला ऑब्लंगेटा के लिहाज से तकरीबन जो सारे वर्टेब्रेट्स हैं वो इक्वली डेवलप्ड होते हैं। जिनके अंदर ब्रेन मौजूद होता है वो सारे इक्वली डेवलप्ड होते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा का ताल्लुक ज़्यादातर उन फंक्शंस के साथ है जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये चीज़ें जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस जैसा कि swallowing है या वॉमिटिंग है और स्नीजिंग है, कफिंग है, ये रिफ्लेक्सेस जो हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनको भी ये मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो अगर किसी को वॉमिटिंग या स्नीजिंग आ रही है तो ये जनरेट होता है इसके अंदर इम्पल्स मेडुला ऑब्लंगेटा में। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्रीशंस हैं, सिलेवरी सेक्रीशंस और दूसरे सेक्रीशंस जो डाइजेशन में हम हेल्प करते हैं, तो उनके सेक्रीशंस को भी मेडुला ऑब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारे ब्रेन से मुताल्लिक जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।